Hello students, this is Sonia Nair and today I am going to teach you current electricity chapter number 3 of science subject. Okay, this is Sonia Nair's tutorials and I would be the principal of this classes, and today we will see many things about electricity, a new concept for you all to learn in physics. So let us start with the chapter current electricity. And as I am very sure that you people must have heard this term electricity earlier. Okay, so if at all we talk about electricity, what does come into your mind? Electricity we use in our day-to-day life, right? So today what we are going to deal is with electricity. So electricity is something which we use in our day-to-day life, right? Maybe in say most of the places like hospitals, banks, offices, private institutions, they require electricity for many of their cores, right? Even electricity is used in many other technical things in industries, like maybe running electrical furnaces, electric motors and other many big machineries. If we see, we use electricity in our day-to-day life in domestic appliances. We use refrigerator at home, we use electric oven, right? We use mixers, fans, washing machine, vacuum cleaner, roti makers, etc. All these things what we use, we use computers, many things. We use electricity, and with electricity all these devices work, right? Now few more examples if I could give you where electricity is used is maybe in defenses. See, one of the natural electricity what we could think about is the lightning that strikes the earth. That is a major big electricity, the natural flow of electricity, right? So this is what I have introduced to this term, that is electricity, with few examples. Now let us see if at all I just draw here. So suppose this is a tank, okay, and this is another tank. Okay, so the water is at this level here, and here the water is at this level. If I connect them with a pipe, okay, if I connect them with a pipe, so if I say the water will start flowing from tank A to tank B. Now level of water here is higher and level of water here is lower. So this is higher level, okay, and this is the lower level. So when the water will start flowing from tank A to tank B, so this process of flowing will continue till a time where both the levels will be same. You understanding? So the water is flowing always from a higher level to a lower level. This you should understand. From a higher level to a lower level. Same way electricity also flows from a higher level to a lower level. When we talk about electricity, suppose this is A and this is point B. Okay, and this is connected with a wire. So this is higher level, maybe plus higher potential. Higher potential is always positive and lower potential is always negative. Understanding? Higher potential would be always positive and lower potential will be always negative. So when the electric charge, see, we should not say that electricity will flow. Electricity never flows. It's the electric charge. हमेशा electric charge flow होता है. Electric charge is represented by a letter Q, a capital Q. So when electric charge is flowing, now you know how the electric charge will flow. It's always from a higher potential to a lower potential. Okay, so from positive to negative. How does the electric charge moves? From a positive terminal to a negative terminal. That is from a higher potential to a lower potential. Understanding?
But when we talk about electrons, so electrons जो होता है, that always moves opposite way. That is from a lower potential to a higher potential. That is from a lower potential to higher potential. That is from negative terminal to positive terminal. Are you people understanding this? So electron का जो motion of movement है, that is always opposite to that of the actual movement of the electric charge. Electric charge will always flow from a positive terminal to a negative terminal. That is from a higher potential to a lower potential, wherein electrons will always move from a lower terminal to a higher terminal. Understanding? The movement of electrons from a lower potential to higher potential will continue till the time when it is being balanced. When the electric potential, देखो electric potential क्या है? Electric potential होता है दो, एक लोअर पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल. दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. एंड व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल्स. दैट्स अ डिफरेंस. डिफरेंस मतलब कितना ज्यादा है, किससे कौन कितना ज्यादा है, दैट इज अ डिफरेंस. सो दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो होने तक ये फ्लो होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ लोअर टर्मिनल टू हायर टर्मिनल. वंस दिस इज जीरो, द इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट विल स्टॉप. Understanding? So this is how it works. And now when we are talking about the potential differences, so we can define the potential difference like, I'll tell you, the amount of, देखो आपके टेक्स्ट बुक में है ये पेज 31 में, that is the definition of potential difference. Okay, very important. Potential difference का definition ये बनता है, the amount of work done to carry a unit positive charge from A to B. अगर A है और ये B है, ठीक है, तो ये A से B कनेक्टेड है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, आप समझ रहे हो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है. तो एक बार कंप्लीट सर्क्यूट से पूरा जाकर आने के लिए हम एक वर्क डन इज कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी कंप्लीटली व्हेन इट्स पासिंग आउट थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्क्यूट. तो ये पर्टिकुलर जो ये डिफरेंसेस है, इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे बिटवीन टू पॉइंट्स. आपको समझ में आ रहा है? तो इसमें वर्क डन कितना वर्क डन? सी, आई कैन राइट पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन द total charge transfer, that is Q. Electric charge is represented by Q. तो potential difference का फॉर्मूला क्या बना? work done upon total charge transferred. तो potential difference normally हम किससे represent करते हैं? by the letter V. V से क्यों represent करते हैं? there is a reason behind it. I'll tell you that. Potential difference एक्चुअली ये जो एक पर्टिकुलर कंसेप्ट है, ये इलेक्ट्रिक सेल से उभरा है. एक इलेक्ट्रिक सेल जो हम बैटरी बोलते हैं, एक इलेक्ट्रिक सेल जो होता है उसमें दोनों टर्मिनल्स होते हैं, उसमें पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव होता है. तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव होता है, इसके अंदर काफ़ी सारे केमिकल्स होते हैं. तो इस केमिकल्स में से इलेक्ट्रॉन्स मूव होता है. तब इलेक्ट्रॉन्स एक बार मूव होता है तब हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें से फ्लो हो रही है. Understanding? So electrons move from which terminal to which terminal, that you all know, from a lower terminal to a higher terminal. तो ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो फिर चालू होता है इसमें, लेकिन ये बहुत ही लोअर पोटेंशियल है. तो ये जो इलेक्ट्रिक सेल है, ये पहला फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट. एक इटालियन साइंटिस्ट थे, इनका नाम था एलेसेंड्रो वोल्टा. इनके नाम से पोटेंशियल डिफरेंस, उनके हॉनर में पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट रखा गया. आप शक्कर लेने जाते हो तो यू गो एंड टेल योर शॉपकीपर दैट यू नीड 1 kg शुगर और 2 kg शुगर. इफ यू गो एंड बाय ऑयल, इट हैज टू बी इन लीटर्स, राइट? सो एवरीथिंग हैज टू बी मेजर्ड विद अ यूनिट.
अंडरस्टैंडिंग। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? वोल्ट। हम कितना बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 10 वोल्ट। अब समझ में आ रहा है? तो ये जो पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, दैट इज इन द हॉनर ऑफ एलेसेंड्रा वोल्टा, हु वाज अ इटालियन साइंटिस्ट, कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक सेल. In his honor, this potential difference has been given the unit's name as volt. Got it? तो जब हम वोल्ट की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस हम काफ़ी अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आई विल टेल यू हाउ. सी वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कि मिली वोल्ट हुआ, दिस इज मिली वोल्ट. ओके, मिली वोल्ट. फिर एक होता है माइक्रो वोल्ट, दिस इज माइक्रो वोल्ट. और थोड़ा लार्ज यूनिट होगा तो कैसा होता है? किलो वोल्ट होता है, छोटा के और बड़ा वी, दिस इज किलो वोल्ट. ओके, उस फिर होता है मेगा वोल्ट, दिस इज वेरी हाई वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज मेगा वोल्ट. अब हम देखेंगे कि ये एक्चुअली हम लोग जो वोल्टेज बोल रहे हैं इसमें कितना व्हाट इज द कन्वर्जन. ओके, 1 मिली वोल्ट विल बी इक्वल टू 10 raised to -3 वोल्ट. 1 माइक्रो वोल्ट विल बी इक्वल टू 10 raised to -6 वोल्ट. 1 किलो वोल्ट विल बी इक्वल टू 10 raised to 3 वोल्ट. and 1 mega volt will be equal to 10 raised to 6 volt. Understanding? So this is how the conversion goes on. And if I define potential difference, it is potential difference, that is volt, is equal to work done upon the charge transferred. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बिकॉज ये न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाला है. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन द चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर्ड. ओके, now we'll see free electrons. Now we'll see free electrons. Suppose ये कंडक्टर है, if this is a conductor, एक कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, it can be any conductor, any metallic conductor. Now in any conductor there are lot of atoms in it. देर आर लॉट, क्योंकि देखो हर एक जो होता है मैटर एटम से बना है, तो बहुत सारे एटम्स तो रहेंगे और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं होता, रैंडमली मूव हो रहे. इलेक्ट्रॉन्स कैसे भी मूव हो रहे रैंडमली, एनी हाउ, बिकॉज इसमें अभी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने नहीं दिया है. गॉट इट? सो दिस इज हाउ इट इज. अब मैं क्या कर रही हूँ, इस पर्टिकुलर कंडक्टर में, now I'm drawing this again. Okay, now इसके अंदर definitely there are atoms as I have shown you. Now this time what's happening is electrons, just a moment, I'm connecting it to a potential difference. एक potential difference से मैंने इसको connect किया है. I'm connecting it to a potential difference. This is positive and this is negative. Now you all can see I've connected this to a electric potential, and now when electric potential is being connected, electrons कैसे move होंगे अभी? It will be moving from a lower potential to a higher potential. तो lower is this, ये negative है इस side और ये positive है इस side, so lower to higher. तो electrons will be moving this way from lower to higher. Got it? So it's moving from lower potential to higher potential. तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, क्या हो रहा है, जब ये मूव होता है तो ये जाके एटम्स को बॉम्बार्ड करता है, जाके हिट होता है. जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, इनका मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, तो इट गोज एंड हिट्स द इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी द एटम्स हियर. एटम्स को वो जैसे ही हिट करते हैं, When it hits the atoms here, तो क्या होता है, जैसे उन एटम को हिट करते हैं उनका जो मोशन होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है. मोशन गेट्स ऑब्स्ट्रक्टेड, है ना. और ये ऑब्स्ट्रक्शन होने के वजह से वहां क्या प्रोड्यूस होता है,
वहाँ प्रोड्यूस होता है रेजिस्टेंस। क्या प्रोड्यूस होता है? रेजिस्टेंस। बोलते हैं ना इसकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी इतनी है, जितने ज़्यादा बॉम्बार्डमेंट होंगे उतने ज़्यादा रेजिस्टेंस होंगे। और एक और चीज़, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बहुत टाइम तक चलने के बाद गर्म हो जाती है। हैव यू ऑल ऑब्जर्व्ड दैट? वो क्यों होता है? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन्स जाके एटम्स को हिट करते हैं तब इलेक्ट्रॉन्स जो फास्ट मूव हो रहे हैं उसमें कौन सी एनर्जी है? कोई चीज़ एकदम फास्ट मूव हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बहुत टाइम चलने के बाद गर्म हो जाता है, बिकॉज ये जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर करके हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये रेजिस्टेंस कैसे फॉर्म हुआ आपको सबको समझ में आया, राइट? जर्मन फिजिस्ट, एक जर्मन फिजिस्ट जिनका नाम था जॉर्ज ओम, ठीक है, जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने एक लॉ बनाया टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। उनके हॉनर में रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो ओम दिया गया, राइट। हाउ पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट है, उसी तरह रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम। तो द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, और ओम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विद दिस सिंबल, ये देख रहे हो, ओम, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट? तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम। एंड हाउ डिड दिस रेजिस्टेंस गॉट इट यूनिट ओम? बिकॉज ऑफ अ जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम who established a law for measuring the resistance of conductor. Okay, so he in his honor the resistance is given its unit, that is ohm, and it's represented symbolically this way. Got it? Now we'll see what is electric current is. So electric current जो होता है ये क्या है? Electric current is represented by a capital letter I. तो if a charge is flowing through a cross section of a conductor, एक कंडक्टर, एक पूरे सर्क्यूट में से अगर चार्ज फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, टाइम t is the time, तो I can be represented by charge upon time. चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर Q, ये आपको समझाया था, और T इज द टाइम टेकन। ओके, और यहाँ पे आपको समझना है कि I जो है ये इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करता है, और द यूनिट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट I जो है इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट है एम्पियर, which is represented by capital letter A. Now how did this ampere word came into existence? This is by a French mathematician and a scientist जिनका नाम था एम्पियर, मिस्टर एम्पियर। इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए बेस्ड ऑन दिस करंट इलेक्ट्रिसिटी, और टुडे वी आर एबल टू मेजर करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर ओनली बिकॉज ऑफ हिज वर्क। Okay, so on his great work and the honor or to recognize his work, what we have done is we have taken the unit of current as ampere by his name, and it is represented by a capital letter A. So अब तक आप लोगों ने क्या क्या सीखा? करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज सीखा जिसका यूनिट, अच्छा इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट मैंने सिखाया नहीं, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है कूलम। क्या है? कूलम, C-O, okay, just a minute, there's a mistake, C-O-U आएगा, कूलम, okay, which is represented by a capital letter C. Okay, coulomb is the unit of charge. Coulomb is the unit of charge. ये कूलम कैसे आया है ये भी एक आपके टेक्स्ट बुक में ये नहीं है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू कि कूलम एक क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो पास होता है पूरे सर्किट से। मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा है, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जितना पास हो रहा है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये पर्टिकुलर जो काम है ये एक फ्रेंच फिजिस्ट जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम, तो मिस्टर कूलम ने ये काम किया था। तो जस्ट बिकॉज ही हैज़ डन दिस ग्रेट वर्क एंड इन हिज ऑनर वी हैव
taken the unit of charge as coulomb, that is represented by a capital letter C. Is this clear? Okay, so electric current, that is I, is equal to Q upon T would be another formula which is very important to solve the numericals. So you will have to memorize even this. So first formula what we did was, what was it? What was it? If anybody remember, what was W upon Q? Potential difference. Very good. And I is equal to Q upon T is the next formula which we have learned. Okay, so 1 ampere is equal to the current. 1 ampere current is said to flow in a conductor if 1 coulomb charge flows through it to the circuit in how many seconds? In 1 second. तो ऐसे हम रिप्रेजेंट, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, अभी आपको एक और वैल्यू याद रखना है, बहुत ज़रूरी है. वो ये है द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन चार्ज, ये बहुत ज़रूरी है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, just remember the value, that is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. ये चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन का. This you all should remember. Clear? Now we'll see what is Ohm's law is. Okay, now Ohm's law, it's very important law, Ohm's law. तो ओम्स लॉ अब क्या बताता है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट इफ अ फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, ध्यान से सुनना, इफ अ फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, ये आपको बाय हार्ट करना है, द करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर. देखो आई जो कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, पहले क्या है? इफ अ फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर. फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है? अगर मैंने मेटल, कोई भी मेटल लिया, उसका फिजिकल स्टेट कांस्टेंट है. अगर मैंने रूम टेम्परेचर में रखा तो भी सेम है, अगर फ्रिज में रखा तो भी सेम है. फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर कांस्टेंट ही रहता है, समझ रहे हो? तो वो फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, देन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V. समझ रहे हो? तो अगर सपोज मैथ्स में A और B आपको दो नंबर दिया है और मैं बोल रही हूँ कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, तो मेरे को अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना है, व्हाट आई डू इज आई पुट अ इक्वल टू एंड पुट अ कांस्टेंट along with B where K is a constant. Same way what we are going to do here, I is directly proportional to V. If I have to remove this proportionality sign, I will have to put one constant here. Let K be equal to constant of proportionality. Clear? Fine. So K is a constant of proportionality. Now what they say is I is directly proportional to the potential difference between its two ends. तो I is equal to KV. ओके, यहाँ पे, यहाँ देखो, I मल्टीप्लाइड, अगर ये K को मैं दूसरे साइड ले जाती हूँ तो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन फॉर्म विथ V. सो इट गोज टू अदर साइड, ये डिवीजन में चला गया, K इक्वल टू V. राइट, यहाँ पे मैं कंसिडर कर रही हूँ कि 1/K जो है इज इक्वल टू R. R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, बराबर. तो यहाँ पे I इंटू 1/K की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? R इज इक्वल टू V. तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ओम्स लॉ. दिस इज द ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ मुझे कैसे मिल रहा है? यहाँ पे मुझे क्या मिला? I R इक्वल टू V, और क्या हो सकता है? V इज इक्वल टू V तो हो गया इक्वल टू I इज इक्वल टू V अपॉन R ले लो, और V अपॉन I इज इक्वल टू R.
ये कोई भी 3 फॉर्मूला मैं इस पर्टिकुलर इसमें से डिराइव कर सकती हूँ। तो ये सब के सब हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से मैंने ये डिराइव किया है। ओके और ओम को मैंने जैसे बताया इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। ओके तो हमारा फॉर्मूला ऐसे बन सकता है यहाँ पे लास्ट कि 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, क्योंकि करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर है, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस क्या है, 1 ओम। दैट इज दिस। गॉट इट? सो दिस इज ओम्स लॉ। Now we'll see what is resistivity is. Okay, now we'll see what is resistivity is. See, at a given temperature, okay, at a given temperature the resistance R, एक कंडक्टर है, एक कोई भी एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है, if suppose the resistance of that conductor is R, okay, उस कंडक्टर का लेंथ हम जो है L से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके कंडक्टर इज R, लेंथ इज L एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन इज क्या होता है, अगर हम उस पर्टिकुलर एरिया को कट करके, है ना, दैट इज अ क्रॉस सेक्शन। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स इफ यू कट any 3D or 2D object into a slice and you slice it perpendicular to the specified axis, so that is area of cross section. Let us consider it as A. So what I could say here is the resistivity of the conductor को हम कैसे करेंगे, resistivity, the resistance then will be directly proportional to the length. तो R is directly proportional to the length and R, the resistance would be inversely proportional to the area of cross section. तो directly proportional to length and inversely proportional to the area of cross section. तो R क्या होगा फिर, then what will be R? R will be L upon A. तो मैंने जैसे आप लोग को पहले सिखाया, अगर मुझे proportionality साइन निकालना है, इक्वल टू डाल के मुझे कोई ना कोई छोटा कांस्टेंट डालना होता है। ओके यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, ये सिंबल है, इसको आप कैसे रीड कर सकते हो, रो। ये आपकी बुक में नहीं है ये वर्ड, लेकिन ये आपको समझना है, दिस इज रो विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्म। ओके ये एक्चुअली पी जैसा दिखता है फॉर्म में, तो दिस इज नोन एज रो। इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटीरियल। गॉट इट? सो यहाँ पे द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, एक रेजिस्टिविटी का यूनिट हम क्या ले सकते हैं, ओम मीटर ले सकते हैं। क्या है, ओम मीटर। दिस इज एसआई यूनिट ऑफ अ रेजिस्टिविटी। ओके तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल एंड डिफरेंट मटीरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी हर एक मटीरियल का अलग है, एल्यूमिनियम का अलग है, आयरन का अलग है, कॉपर का अलग है, तो इट इज ऑल डिफरेंट फॉर अ डिफरेंट मटीरियल्स। अंडरस्टैंडिंग? A continuous path of electric current through conducting wire connected to two ends. See, if suppose I give you example, अब यहाँ आप देखो, ये अगर मैंने ऐसे बनाया, ये एक सर्किट डायग्राम है, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ओके, एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, और ये रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। सपोज ये दिस इज वोल्ट मीटर, ओके, प्लस माइनस। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज फ्लोइंग लाइक दिस, ओके, okay, this is how it goes on. So this is a resistance, this is ammeter, this is voltmeter, this is the electric potential, electric cell, okay, this is the electric cell E. So अगर आप देखोगे यहाँ पे, so this whole thing is a complete circuit,
A circuit is depicted by this figure. This figure shows how different components are connected in the circuit by using special symbols. Okay, that I'll come to the symbol part, where I'll be also teaching all the different symbols used. So ये particular जो diagram मैंने बनाया है, this is known as electric circuit diagram. अब अगर ammeter है, if I am talking about ammeter, ammeter is used to measure the electric current. Ampere है ना इसका यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का, तो एमीटर. एंड वोल्ट मीटर इज यूज्ड, वोल्ट मीटर जो है इज यूज्ड, वोल्ट मीटर यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. One thing you all should remember is, if you are measuring a voltmeter which is having a very high resistance, then definitely the current flowing will be very small. Okay, that is the difference. Okay. Now we all see this picture. This is a cell. Okay, symbolically we represented it this way. अगर हमने एक से ज़्यादा सेल लगाया तो हम लोग कैसे इसको कनेक्टिविटी दिखाएंगे, प्लस माइनस, देन कनेक्टेड अगेन टू अ पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, देन पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव. दिस इज हाउ वी पुट इन इलेक्ट्रिक सेल. हम कहते हैं जब एक रहता है, एक से ज्यादा रहेगा वी कॉल इट एज बैटरी. व्हाट डू वी कॉल इट एज बैटरी. ठीक है, अगर ये की है, ये की ओपन बता रहे हैं, तो ओपन रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है. अगर क्लोज करते हैं, ये टैप की बोलते हैं इसको, तो इफ यू क्लोज इट द सिंबल इज दिस, द की इज क्लोज्ड. सो की इज क्लोज्ड इस तरीके से, दैट मीन्स नाउ द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्क्यूट शुड बी देयर. ओके, नाउ दिस इज द कंडक्टिंग कनेक्टिंग वायर, जो हम सिंबॉलिकली वायर ऐसे दिखाते हैं सीधे लाइन से. ठीक है, वायर जो कनेक्ट होता है. फिर ये क्रॉसिंग वायर को हम ऐसे दिखाते हैं, अगर वायर क्रॉस होता है ना, कनेक्टिंग वायर्स जो क्रॉस दिखाते हैं, तो दैट इज शोन दिस वे. दिस इज द सिंबल फॉर दैट. नाउ बल्ब, बल्ब अगर ग्लो होता है, नहीं होता है, अभी नहीं ग्लो हो रहा है तो हम ऐसे दिखाते हैं, और अगर ग्लो होता है बल्ब तो दिस इज द सिंबल टू शो इट. ओके, नेक्स्ट इज द रेजिस्टेंस. इफ यू सी द रेजिस्टेंस, ये एक्चुअल रेजिस्टेंस ऐसे दिखता है, लेकिन हम सिंबॉलिकली रेजिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट अ रेजिस्टेंस. वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग को रेजिस्टेंस चेंज करना पड़ता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करंट को कंट्रोल करने के लिए. तो दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो लैब में आपको ऐसे दिखेगा, लेकिन सिंबॉलिकली अगर हमको वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाए तो वी डू इट दिस वे. Okay, if you all see, this is ammeter, symbolically this way. Actually it is this, symbolically represented by a letter A. Okay, and voltmeters, it looks like this, same like ammeter, symbolically represented by a letter V. So these are the symbols which I have completed, which is there in your textbook page number 36. So this is the video 1 in which I have covered all this. In video 2 you will be getting the continuation of this chapter. So I hope you all must have understood this lesson by now, and also kindly memorize the formulas given to you with the symbols and the definitions as well. Okay, in the next video we'll be completing the other part, and also we'll be completing the numericals. Okay children, so you have a good day. Bye, take care.